We share the screen with you. Some of the students have already covered it, but we are going to revise it and we are going to study two more elements, sulfur and oxygen, apart from carbon, hydrogen and nitrogen that we did earlier. Okay. So last time when we were studying this particular topic, we covered till nitrogen. So we are going to start and revise the first two components and study about the new elements, and we'll try to find out their composition. Okay students, so basically what was ultimate analysis? Ultimate analysis is a chemical method which is used to calculate the composition of coal by finding out the parameters, like all the five parameters are written on the board: carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen. So in finding out their percentage composition, what we need is to do a chemical analysis. Okay. So what is happening? For the chemical analysis, we are going to study the carbon and the hydrogen part first. So अभी हम जो फर्स्ट डायग्राम हम शो करेंगे, स्लाइड जो ऑलरेडी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हुई है, these two elements we are going to find out, and then we are going to find out nitrogen and sulfur and oxygen. Okay. So what is happening? Just look at this slide. यहाँ पे एक डायग्राम प्रेजेंट किया हुआ है विच हैज गॉट अ कंबस्शन ट्यूब. ठीक है, दिस कंबस्शन ट्यूब, ये डायग्राम में ऑलरेडी कंबस्शन ट्यूब है, तो दिस कंबस्शन ट्यूब हैज गॉट द वेड अमाउंट ऑफ कोल प्रेजेंट. ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं बर्न. ठीक है, schematic में already present है. So what is happening? We have taken this particular weighed amount of coal and we are heating it in the presence of pure dry oxygen. So why we are using pure dry oxygen? We are using pure dry oxygen to eliminate any interference with external moisture. क्योंकि यहाँ पे हम water के content या hydrogen content के बारे में भी study कर रहे हैं. So we are not we are not expecting any interference with the atmospheric moisture or carbon dioxide. So we need pure dry oxygen. जो कि जबकि अगर हम नॉर्मल एयर अगर पुट इन करते कंबस्टन ट्यूब में, तो उसमें जो नॉर्मल कंटेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, वाटर वेपर, ये प्रेजेंट हो सकते थे. सो वी आर यूजिंग pure and dry oxygen to heat this particular coal which is present in your platinum board and we burn it. ठीक है. So what is happening? कंबस्टन के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि अगर हम कंप्लीट कंबस्टन होता है तो उसके दो प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं कंबस्टन के. इफ द कंबस्टन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. So what we are doing, we are trying to figure out the percentage carbon and percentage of hydrogen using these two combustion products, which is your carbon and your carbon dioxide and your hydrogen. So what we have done, students, is that you can just see, have a look at it in the schematic. In the first U tube, this U-shaped tube, in the first U tube we have taken anhydrous calcium chloride, whereas in the second one we have taken पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स, ये दोनों ही कंपाउंड CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द परसेंटेज कार्बन एंड योर परसेंटेज हाइड्रोजन. सो लेट्स जस्ट गो टू द पॉइंट. स्कीमेटिक सभी ने देख लिया है. एक नोन वेट ऑफ कोल हैज बीन टेकन इन अ प्लैटिनम बोर्ड. Pure dry oxygen is allowed to pass in through this combustion tube, and whatever byproducts are formed, they are passed through these two U tubes. ठीक है. So the product, the gaseous, I'm going to the point number 3. So the gaseous products formed are passed through the two bulbs which have got, this point is important, weighed amount of
कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जो कि कोल में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगी और वो वाटर को फॉर्म करेगी या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगी। सो लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में दो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, कंबस्शन, ये दोनों कोल में ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कंबस्टिव प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन। तो ये क्यूब 1 है, क्यूब है, KOH की क्यूब है और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड की क्यूब है, ठीक है। अब इसमें दोनों में ग्रेट अमाउंट ऑफ केमिकल रखा है। So let's just go to the reaction. So what is happening when carbon dioxide reacts with KOH, as you can see it in the slide, it gives you potassium carbonate, ठीक है, K2O2. Whenever this particular water molecule reacts with anhydrous calcium chloride, ठीक है, anhydrous means it's having no moisture. So when it reacts with H2O2, it gives you hydrated calcium chloride, ठीक है, it absorbs water. तो ये दो रिएक्शंस है। तो ये एक experiment था जिसमें कि combustion tube was taken, then there was a tube 1 and tube 2 and this reaction happens. So when you talk about analysis, ultimate analysis of carbon and hydrogen in your examination, I want you to write these two reactions for your answer, okay? कि carbon dioxide which reacts with KOH to give you K2CO3 and water, whereas calcium chloride, anhydrous calcium chloride reacts with water and it gives you a hydrated calcium chloride. So this is what is happening inside the tube that has been taken for the analysis of this particular carbon and hydrogen, ठीक है। अब इसमें दो तीन पैरामीटर्स हैं which we are going to understand. एनालिसिस कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। एक कंबस्शन ट्यूब लिया था, उसमें एक नोड लेकर कोल बर्न किया और उसके प्रोडक्ट्स को दो यू शेप ट्यूब से पास किया, which was having compounds calcium chloride and calcium this potassium hydroxide and your H2O is in calcium chloride tube, ठीक है। इस तरीके से इजीली याद करेंगे। तो it gives you CaCl2 dot H2O, this balance it and then this gives you K2CO2, ठीक है। एक स्मॉल फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन वेट, क्योंकि हमने जो दोनों ही ट्यूब से लिया था, KOH ट्यूब था, कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब था, इसमें ऑलरेडी वेट मेजर किया था। So what we are observing the change in weight, okay. So the parameters are given in the slide. So increase in the weight of calcium chloride is weight of the coal sample taken is your x grams, whereas increase in the weight of calcium chloride, because जब ये water absorb कर लेगा तो उसमें there will be some increase in weight, ठीक है। Same will happen in the case of this tube. So when it forms K2CO3 or when the carbon dioxide it reacts with KOH, there will be some increase in weight. So we are going to observe that increase in weight. That is what we are doing. So when we talk about calculating the percentage of carbon dioxide and water, what we have to yes. मैम ओवरऑल वेट तो K2CO3 का चेंज बढ़ा है ना मैम? हाँ हाँ, तो ट्यूब का पूरा हम K2CO3 की बात नहीं कर रहे हैं इनिशियली, इन पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन वेट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। कि KOH का जो वेट है वो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालो और K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, दोनों का वेट में क्या डिफरेंस आया है, हैज देयर बीन अ चेंज इन रिलेशन टू द ट्यूब आल्सो, ठीक है। इसका कितना वेट है और इसका कितना वेट है, तो क्या इस ट्यूब के वेट में और इस ट्यूब के वेट में जब ये पूरा फॉर्म हो जाएगा तो क्या उसमें चेंज आएगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। ओके मैम। हम ठीक है,
तो अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। कैलकुलेटेड एंड जस्ट फिगर इट आउट, ठीक है। तो इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना वेट है? कार्बन का वेट है 12 ग्राम, दैट वी ऑल नो, ठीक है। वही मैंने स्लाइड में लिखा है। तो अगर y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट होगा? y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनती है तो उसमें कार्बन का कितना वेट होगा? दैट विल कैलकुलेट बाय सिंपल यूनिटरी मेथड, व्हिच इज योर 12 by 44 into whatever grams of carbon dioxide has been formed or whatever is the change in the KOH cube. So we are going to write it here and we are going to calculate the percentage. This total को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, you will get the percentage. So ये आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन है। सो बेसिकली 44 ग्राम्स ऑफ CO2 हैज 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। सो अगर y ग्राम्स ऑफ CO2 अगर होगा और चेंज इन रेट ऑफ CO2 है, रेट ऑफ KOH है, KOH क्यूब, ठीक है। तो कितनी उसमें कार्बन है? दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यूजिंग दिस मेथड। Similar method we are going to follow for the calculation of water. So we will let you write it for water. Water का measure करने के लिए what we are doing? We are measuring change in weight of CaCl2 ट्यूब, ठीक है। पहले रिएक्शन से पहले कितना वेट था उस पर्टिकुलर ट्यूब का, रिएक्शन के बाद कितना वेट है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड इन दिस स्लाइड वी हैव डिनोटेड दैट वेट एज Z। स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन चेक कर लेना एक बार ये ZYX का। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू सेट इट विद X, Y and Z, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट और वी आर मेजरिंग द चेंज ऑफ वेट इन CaCl2 ट्यूब। So what is happening? We are measuring the percentage of hydrogen. So let's talk about water. So water का वेट कितना है? वाटर का वेट है, molecular weight is 18. So what is the amount of hydrogen in it? The amount of hydrogen is 2 grams. So if 18 grams of water contains 2 grams of hydrogen, so by unitary method, Z grams of water contains what? 2 by 18 into Z grams. तो ये Z क्या है? Z is nothing but the increase in weight of CaCl2 tube, like I've already told you. तो ये मेथड यूज करके आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस 2 by 18 into Z into 100, this is Z, you will get the percentage of hydrogen. So इस पूरे जो कैलकुलेशन है कंबस्शन ट्यूब का फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें 2-3 चीजें हैं which you have to remember. First is pure dry oxygen, use it, ठीक है। दूसरा है CO2, KOH cube and it gives you K2CO3. Third point is calcium chloride and the reactive water produced to give you hydrated CaCl2.7H4. This is you have to remember, and then you have to remember 2 more things. For carbon, it's 12 by 44 into Y into 1000 or into 100 for percentage. For hydrogen, it's 2 by 18 into Z into 100.
So this Z or Y will change anytime you want. You can use a different alphabet for your understanding. But the concept is increase in the weight of KOH cube. कभी कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 cube. अगर ऐसे भी लिखा होता है कि CaCl2 cube का वेट इतना इंक्रीज हो गया तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है मैम में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए स्लाइड में तो वेट ऑफ कोल 100 को वेट ऑफ कोल से डिवाइड किया हुआ है. हाँ हाँ तो उसके लिए आप करेंगे ना. वेट ऑफ कोल नहीं है भाई मैम वेट ऑफ कोल ही लिखा हाँ है वहां पे तो. हाँ हाँ तो वो करना है ना आपको. आई एम टेलिंग यू अबाउट द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. ठीक है. ठीक है तो ये तो आपको समझ में आया ना कि ये क्या है. ये कहाँ से आया. दिस कम्स फ्रॉम योर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है यस मैम ये तो आ गई. अब क्लियर है. ये हाँ परसेंटेज जी. निकालना आ गया. अब उसके बाद अगर आपको टोटल परसेंटेज निकालना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय द वेट ऑफ द होल जैसे कि हम अप्रॉक्सीमेट में करते थे. तो आई विल राइट द फॉर्मूला अगेन. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें लेना है तो 12/44 into y upon you can do it this way upon weight of coal. ठीक है इसको 100 को इधर लिखते हैं बिल्कुल ही क्लियर कर सकते हैं. ऐसे ही परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए 2/18 into Z upon weight of coal into 100. ठीक है अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. फॉर्मूलाज तो स्लाइड में लिखा ही है बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिएक्शंस क्या है क्या बन रहा है और क्यों वेट इन इंक्रीज में हम जैसे कि एक स्टूडेंट ने अभी पूछा था कि पोटेशियम कार्बोनेट क्यों लेते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट के वेट के बारे में भी बात कर रहे हैं. सो इट्स बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द टोटल वेट ऑफ द ट्यूब एंड द मॉलिक्यूलर वेट हैज आल्सो इंक्रीज. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है Y और Z का नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से सेट कर लेना वट एवर यू फील इज राइट फॉर यू. बट न्यूमेरिकल करते टाइम देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि कौन सी ट्यूब का कौन सा वेट है इसके लिए है. ठीक है Similarly, we are going to measure the night. अच्छा इसकी significance we have to talk about. So कार्बन और हाइड्रोजन हम पिछली 4-5 क्लासेस से समझते आ रहे हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो उसका पीछे एक बड़ा रीज़न है कार्बन कंटेंट ज़्यादा होना या फिर हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होना बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कंबस्टिबल. ठीक है so if we have a higher percentage of carbon and higher percentage of hydrogen in our particular coal then it's very likable कि calorific value भी ज़्यादा होगी. ठीक है so higher percentage of like I have written higher percentage of hydrogen increases the calorific value and the higher percentage of carbon also reduces the size of combustion chamber. ठीक है so basically these are the significant points which you have to write. And if you are being asked for ultimate analysis, then draw the schematic as per you like, a simple schematic, and write the reaction which is given on the next slide. ये वाला reaction आप mention कर सकते हो. उसके बाद ये calculation, ये point है. This is how you are going to calculate the carbon percentage and hydrogen percentage. Now let's get back to our next topic, which is your calculation of nitrogen content, the analysis of nitrogen. So in this particular image, we can see two flasks, first flask and the second one. So the first flask is also referred to as the Geldar's flask. ये वाला ठीक है ये जो particular flask है, this is your Geldar's flask, and then we have a this second flask. So इसमें तीन हम ड्रॉ कर देते हैं बोर्ड पे एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. नाइट्रोजन का एनालिसिस है. तो फ्लास्क 1
This is your class. Then we have the class 2. कोनिकल क्लास. तो 3 क्लास किया हुआ है इमेज में. तो इन द फर्स्ट क्लास यू कैन सी कोल है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है. Similarly, there are 2 catalysts. So what are the catalysts? K2SO4 plus your HgSO4 mercury sulfate. ठीक है. अब ये दोनों ही आपके फ्लास्क 1 में प्रेजेंट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर जेल्डाल्स फ्लास्क. ठीक है. अब एक रिएक्शन इसमें प्रोसीड करेगी एंड वी आर गोइंग टू मेजर दैट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन by using the products of this particular first flask. So what are the products? What happens? Products. I'm writing it. Can you see the board? The lower side of the board. Can you see it? Okay. ये जो फर्स्ट फ्लास्क है इसमें क्या कोल प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है. ये कैटलिस्ट है which are already marked in your slide. Now we have to use the product. So what is happening? We are getting ammonium sulfate. ठीक है. This ammonium sulfate cannot help you directly to measure the amount of nitrogen. So we have to proceed with the second step. So what we are doing? We are taking this ammonium sulfate from the first class and transferring it to the second class. ठीक है. इसी में इससे सेकेंड में ट्रांसफर करते हैं. तो सेकेंड में व्हाट वी आर डूइंग? वी आर रिएक्टिंग प्लस NaOH in excess. ठीक है. इसको रिएक्ट किया with excess amount of NaOH. So this particular reaction gives you 3 products. So what are the products? The products are Na2SO4. The main product that we have to talk about is your ammonia. You can see it in this slide. The other products are given in this slide. So the main product is ammonia vapors. Okay. तो थर्ड क्लास में जैसे कि हम फर्स्ट क्लास से प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट को लेकर के आए थे and we transferred it to the second class. We reacted with it with NaOH as given in the slide. Now we got 3 products, which is your sodium sulfate, ammonia and water. So in the conical class we are only concerned about your ammonia vapors. यहाँ पे let's go back to this slide. ठीक है. कंडेंसेशन ट्यूब इज ऑलरेडी देयर, सो वेपर्स आर कंडेंस्ड. तो ये किसके वेपर्स हैं? ये अमोनिया के वेपर्स हैं विच हैव बीन कंडेंस्ड एंड दीज वेपर्स दे केमिकल फ्लास्क which has already got a measured volume. Concentrated H2SO4 is present which has got measured volume and normality. ठीक है. ये जो येलो कलर का आपको इमेज दिख रहा है कॉनिकल क्लास में which I have mentioned your concentrated H2SO4. Students keep this in mind that the volume and the normality of this particular concentrated H2SO4 is known. ठीक है. यहाँ पे because we are going to use this H2SO4 for titration further analysis के लिए, but for now you should remember that the conical flask has got a concentrated H2SO4 in it. Okay, so what is happening? There is a reaction taking place again. This concentrated H2SO4 reacts with your ammonia vapors and again gives you ammonium persulfate. Ammonium sulfate, not persulfate, ammonium sulfate. Okay, so this was all about your 3 flasks or 3 reactions. So when you are going to write in your exams or any quiz, you should remember these 3 reactions. This particular happens in your flask 1, whereas this takes place in your flask 2, and ammonia is important here, and this ammonia reacts with
your H2SO4 which is in your known concentration. ठीक है, अब आता है आगे इसका experiment. We have got a ammonia which has reacted with a known concentration of H2SO4, and the products is, you know, the unused acid is determined by titrating against NaOH. ठीक है, कितना acid बच गया that we will figure out by titrating it against NaOH. Thus the volume of acid used up by ammonia is used to calculate the percentage of nitrogen in the sample. ये point है which you have to understand. ठीक है, ये तीन reactions हैं which you have to learn, and then the last point is that the volume of acid used up by ammonia is used to calculate the percentage of nitrogen in the sample. Now let's go to the next slide. तो यहाँ पे आप देख सकते हो we are again talking about the weight of the coal sample taken. So weight of the coal sample taken is important from the Bohm's calorimeter calculation only. ठीक है, बॉम्ब्स में, बॉयज में, एंड देन वी हैव अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, सब में वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन और वेट ऑफ द फ्यूल सैंपल टेकन इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, द अनयूज्ड एसिड इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट NaOH. द वॉल्यूम, इसको ध्यान में रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड बाय अमोनिया इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सैंपल. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक पैरामीटर का टेबल बनाते हैं. What we are doing, we have taken the weight of the coal which is denoted as W grams. Now we have the weight volume of the acid used. क्योंकि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें we found out कि जितना एसिड यूज होगा उतनी ही अमोनिया प्रोड्यूस होती है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट द टू. ठीक है, जो कोनिकल फ्लास्क वाला रिएक्शन है, कोनिकल फ्लास्क में अमोनिया वेपर्स जाते हैं एंड दे रिएक्ट विद concentrated H2SO4 of known volume V1 and normality N1. ठीक है, it's found out और it is taken it as कि जो जितनी अमोनिया है उतना ही एसिड यूज होता है. रिएक्टेंट्स की बात हो रही है ना, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जितनी अमोनिया है उतना ही एसिड यूज हुआ है. So we are going to use that particular relation between the two for calculating the percentage of nitrogen. So let's just go to this point. So V1 is the volume of acid used, V2 is the volume of ammonia which has been produced. So from N1 V1 is equals to N2 V2, we have V2, let's consider ammonia की normality 1 थी. ठीक है, normality of ammonia solution is 1 normal. ठीक है, ये पॉइंट है. तो अगर N1 V1 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो N1 इक्वल टू N2 V2. ठीक है, ये आपका अमोनिया वाला एरिया है, दिस इज योर एसिड. तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोनिकल फ्लास्क में जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम यूज कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम और नॉर्मलिटी नोन है. ठीक है, तो कितना वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं दैट विल डायरेक्टली गिव यू द रिलेशन बिटवीन दी एसिड एंड योर अमोनिया. ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक है, V1 and N1 is equals to V2 and N2. N2 is 1 normal. ठीक है, but if 1000 ml of ammonia solution is there, तो उसमें कितनी नाइट्रोजन है that we are going to find out. ठीक है, अगर ये 1 नॉर्मल होता है और 1000 है तो मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में बात करते हैं. इतना तो क्लियर है ना कि जितनी अमोनिया यूज होती है उतना ही एसिड यूज होता है, जितनी अमोनिया प्रोड्यूस होती है उतना ही एसिड यूज होता है. एंड वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट एसिड एज N1 is equals to
है, अमोनिया के लिए we have N2V2. So what is happening? अगर 1000 ml का है 1 नॉर्मल अमोनिया, तो कितनी नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर कंटेंट में? वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट. 17 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो उसमें कितनी आपकी नाइट्रोजन है? 14 ग्राम नाइट्रोजन है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो नाइट्रोजन तक ही जाना है ना. अमोनिया इट्स लाइक अ it's a compound which is helping you determine the percentage of nitrogen. So we have to go to nitrogen. So एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितनी नाइट्रोजन है? It's your 14 grams नाइट्रोजन. ठीक है, तो सिमिलरली अगर 1000 में अगर हम बात करें तो कितनी होगी? It will be 14 by 1000. ठीक है, so volume of ammonia which is produced of ammonia for one normal ammonia solution is given as N1 into V1. ये कहाँ से आया? ये आया एसिड से. ठीक है, let's go to the slide. First point was weight of coal sample taken, which is your W grams. Then the volume of acid used. V1 is the, I am again repeating, this is the volume of acid used. This is the normality of the acid, and we have figured out the relation that जितना acid use होता है उतनी ही ammonia produce होती है. ठीक है, तो यही relation अगर हम यहाँ पे लगाएं इस point में, तो V2 को हम N1 is equals to N2 भी N1 V1 भी लिख सकते हैं, because हम दोनों का equal ratio में बात कर रहे हैं. ठीक है, ये वॉल्यूम यूज वाला है. ठीक है, तो जितना ये प्रोड्यूस होगा उतना ही ये है. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू, दैट ये वैल्यू कितनी है उतनी ही वैल्यू ये होनी चाहिए. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ अमोनिया मॉलिक्यूल व्हिच केम डाउन टू योर 14 grams when taken in 1 liter or 1000 ml. It came down to 14 by 1000. So 14 by 1000 कितना वॉल्यूम? It is equal to V2 equal to N1, that is the normality of the acid and volume of the acid. हम इससे रिलेशन निकाल लिया है. ठीक है, so what is the percentage of nitrogen which is taken? The percentage of nitrogen which is there in the coal is again this total divided by weight of the coal into 100. ठीक है, अब इस पॉइंट में अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ ले. मैम किसी को? हाँ मैम, why did we have divided 14 by 1000? we divided by 14 by 1000 because we are considering that अगर 1000 ml होता है अगर हमारा बनता है या 1000 ml है तो उसका कितना रेशियो होगा. ठीक है, Okay. अगर वन नॉर्मल सोल्यूशन है और वो 1000 ml है तो उसका कितना होगा? बिकॉज वी हैव टू टेक अ सर्टेन वैल्यू. व्हाट इज 1000 ml? 1000 ml इज 1 लीटर. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट इन लीटर्स. सो ये हम 14 by 1000 इसलिए लेते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am. अच्छा, ये 14 by 1000 N1 into V1 क्यों लिया, ये कोई स्टूडेंट बताओ मुझे. तभी आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट you students are getting something. N1 into V1 क्यों लिया ये यहाँ पे this point? 14 by 1000 into N1 into V1. So why we are talking about N1 into V1? हम यहाँ पे V2 लिख सकते थे. This is because the volume of acid used V1
and normality of the acid तो already given है, ये change नहीं होगी, but volume of acid is equal to the amount of ammonia that is produced. ठीक है, तो अमोनिया एग्जैक्टली कितनी प्रोड्यूस होती है ये आप यहाँ पे वेपर्स देखिए, यहाँ पे वेपर्स या ड्रॉपलेट्स को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है. सम माइट स्टिक टू दी दिस पर्टिकुलर कंडेंसर, सम माइट नॉट कंडेंस, ठीक है. सो एग्जैक्टली कितनी होगी यू हैव टू फिगर इट आउट इन सर्टेन वे, या फिर कितनी इसमें डिजॉल्व हो गई अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए. यू कैन नॉट कैलकुलेट इट डायरेक्टली, so you have to take some other method or some secondary method to figure that out. What is that method? That method is to measure the amount of HCl or the acid that is used. ठीक है, ये एक known volume of acid है, ये अमोनिया है जो कि फॉर्म हुई है. तो ये कैसे पता चले कि ये कितनी फॉर्म हुई है? That can be calculated by calculating the volume of this acid which is being used in your conical flask. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में V1 ले लेते हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस. ठीक है, आई होप अभी क्लियर होगा. एंड percentage of nitrogen is again given as 14/1000 into N1 into V1 upon the weight of the coal. ठीक है, so नाइट्रोजन वाले केस में स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज द रिलेशन बिटवीन द एसिड एंड नाइट्रोजन इज that the amount of acid consumed in the reaction is equal to the amount of nitrogen present or ammonia produced in the sample, in the coal sample. ठीक है, जितना यहाँ पे एसिड यूज हुआ है उतनी ही नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई है. इसी के बेसिस पे ये पूरा कैलकुलेशन डिजाइंड है. ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब यू विल फाइंड आउट कि इतना वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज हो गया, नॉर्मलिटी हमारे पास है. तो अमोनिया का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला N1V1 is equals to N2V2 and figure out the percentage of nitrogen. ठीक है, so this is all about your nitrogen. so नाइट्रोजन का हायर परसेंटेज होना सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट हेल्पिंग यू इन कंबस्शन प्रोसेसेस. ठीक है, इसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है. बट just take a paper and write it down that nitrogen has no significance in terms of calorific value. Why? And you have to also remember its significance. So significance क्या है? नाइट्रोजन का कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट कंबस्टेबल. बट अगर आपको कोई और केमिकल रिएक्शन करना है या कोई और यूज करना है, ठीक है,
देखो ये यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे इस स्टेज में अमोनिया बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन थी ये तो एनालिसिस की बात थी कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट इन जनरल अगर कोई कोल्ड सैंपल है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको यूज़ करने के दो फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट कि आप अमोनिया उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें इस सेम रिएक्शन को फॉलो करके, या फिर आप उसमें से अमोनियम सल्फेट यूज़ कर लें। सो व्हाट इज़ अमोनियम सल्फेट? अमोनियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। ये जो दोनों ही हमने जेल्डाल्स रिएक्शन में देखे, दोनों ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अमोनियम सल्फेट है या अमोनिया है, दे हैव गॉट सम इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस। तो ऐसे तो नाइट्रोजन इज नॉट यूजफुल कि अगर आपको एक कंबस्शन चेम्बर में नाइट्रोजन कोल सैंपल बर्न करना है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इट्स नॉट यूजफुल। बट इफ यू हैव सम अदर प्लान्स, इफ यू हैव सम अदर requirements, then you can get two chemicals out of this process. First is your nitrogen and second is your ammonium sulfate, ठीक है। So ammonium sulfate is used as a fertilizer, whereas अमोनिया इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अमोनिया यूज होती है। तो अगर किसी के पास ऐसा कोल्ड सैंपल आ जाता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो अमोनिया एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अमोनियम सल्फेट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एंड दे कैन बोथ बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। so this is your significance for nitrogen। अब जाते हैं सल्फर पे। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन में KOH, हाइड्रोजन में CaCl2 एंड फॉर नाइट्रोजन इट्स योर जेल्डाल्स रिएक्शन, इसमें किया H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हो और उसमें H2SO4 का कितना कंज्यूम हुआ उसको मेजर कर रहे हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है कि नॉन कंबस्टिबल है तो कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, बट अगर किसी के कोई केमिकल सिंथेसिस या केमिकल एक्सट्रैक्शन का कोई उसका प्रोसेस है तो उसमें दैट पर्सन कैन एक्सट्रैक्ट अमोनिया एंड अमोनियम सल्फेट। दीज आर द टू सिग्निफिकेंसेस फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। कि कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है बट ये केमिकल्स यूज कर सकते हैं इफ समबडी हैज गॉट कोल विद अ हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज योर सल्फर, ठीक है। तो एक बॉम्ब्स कैलोरीमीटर की स्लाइड थी जिसमें कि आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉम्ब्स कैलोरीमीटर की एक स्लाइड थी जिसमें कि आई वाज टेलिंग यू कि ये क्लोज क्रूसिबल है जिसमें कोल बर्न होता है, दिस इज ऑल फाइन। और जितना भी कंटेंट है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट भी करने दे रहे थे, तो जितना भी कंटेंट है वाटर मॉलिक्यूल या जो भी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको वो सब यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्ट लाइक बॉम्ब कैलोरीमीटर की स्लाइड को आप रेफर करेंगे तो यू विल फाइंड आउट आई हैव टॉक्ड अबाउट एसिड करेक्शन। तो उसमें दो एसिड्स थे HNO3 and H2SO4। so we are going to consider the HNO3 for H2SO4 for your sulfur amount calculation, ठीक है। यहाँ पे ये बॉम्ब्स कैलोरीमीटर था और ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितना भी बाय प्रोडक्ट्स है वो इधर वॉल्स पे कंडेंस हो जाता है। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो दो तरीके हैं सल्फर को आप मेजर करो इन अ कोल। सो द फर्स्ट मेथड इज that the sulfur present in the coal is oxidized to H2SO4 by fuming nitric acid, like hot and concentrated nitric acid के साथ अगर आप कोल सैंपल को ट्रीट करोगे, ठीक है। ये इमेज ध्यान में रखना बिकॉज ये नेक्स्ट में इसको यूज करेंगे। चलो एक कोल सैंपल है, कोल सैंपल and this coal has got some sulfur in it. So what you will do to react this to extract the amount of or the percentage of sulfur in it, you will react this particular coal
with HNO3. So what type of HNO3 you are taking? You are taking hot and concentrated. Like concentrated है और आपने उसको heat भी किया है. So what is getting formed? Sulfuric acid, nitrogen dioxide and water mixture. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है. सेकेंड मेथड में क्या है? सेकेंड मेथड में यू आर टेकिंग दी वॉशिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द बॉम्ब कैलोरीमीटर. वॉशिंग्स क्या होती है? यहाँ पे जितना भी है जो कंटेंट था उसको आपने वॉश करके फ्लूइड या वाटर से यू हैव कलेक्टेड दैट. सो दैट इज कॉल्ड द वॉशिंग. ठीक है, जो भी उसके कंटेनर के वॉल्स के जो भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट थे उसको आपने वॉश करके एक कंटेनर में ले लिया है, एक उसमें फ्लास्क में ले लिया है. एंड व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ट्रीटेड दैट वॉशिंग विद बेरियम क्लोराइड. ठीक है, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर कोई सैंपल में सल्फर प्रेजेंट है तो वो H2SO4 के फॉर्म में आता है. लाइक आई टोल्ड यू एसिड करेक्शन में बोला था कि H2SO4 एसिड बनते हैं. तो हमने क्या किया? सल्फर को कैलकुलेट करके ही ये जितना भी एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कंडेंस था इसको कलेक्ट किया और इसको कलेक्ट करके इसकी रिएक्शन करा दी बेरियम क्लोराइड से. तो व्हाट इज हैपनिंग? बेरियम सल्फेट इज गेटिंग फॉर्म. ठीक है, ये प्रोसेस बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने का हम दोनों स्टेप्स में कर सकते हैं. जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें कि हमने सल्फर को डायरेक्ट एक सल्फर का पीस लेके या एक सैंपल वेड अमाउंट ऑफ सैंपल लेके और उसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस पर्टिकुलर थिंग, और H2SO4 बना. या फिर आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो उसकी वॉल्स के एक्सट्रैक्ट्स थे, उसको आपने बेरियम क्लोराइड से ट्रीट कर दिया. सो व्हाट इज हैपनिंग? बेरियम क्लोराइड इज गेटिंग फॉर्म. एरो अगर लोअर साइड में है तो उसका क्या मतलब होता है? एरो अगर लोअर साइड में है, जैसे कि इन्वर्टेड एरो है, तो इट मीन्स इट्स गेटिंग फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स गो टू द टेबल. वी हैव टेकन अ वेट ऑफ कोल्ड सैंपल विच इज नोन अगेन W grams. मास ऑफ द प्रेसिपिटेट, किसका प्रेसिपिटेट? बेरियम सल्फेट का. ठीक है, दिस प्रेसिपिटेट इज टेकन एज L grams. So if 233 grams of barium sulfate has got 32 grams, सेम मेथड है जो हमने कार्बन के लिए और हाँ हाइड्रोजन के लिए यूज किया था. तो इतना तो क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रेटेड कोल सैंपल डायरेक्टली लेके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, H2SO4 बना, या फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर की वॉशिंग्स को आपने ट्रीट किया और प्रेसिपिटेट बना. ठीक है, दिस इज योर प्रेसिपिटेट. तो हम यही सेम सैंपल इसका वेट लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे सल्फर के परसेंटेज. लेट मी जस्ट डू इट. तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 233. तो इस पर्टिकुलर 233 में कितना पार्ट बेरियम है? इट्स योर 32 grams. 32 grams सल्फर. ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि अगर L grams ऑफ बेरियम सल्फेट है तो कितना ग्राम ऑफ सल्फर होगा? वी आर गोइंग टू अगेन यूज द यूनिट मेथड. इससे 32 by 233 into L grams जो आपका PVC का वेट है. ठीक है, इसको फिर आप वेट ऑफ कोल से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए. सो यू आर गोइंग टू गेट द वेट ऑफ सल्फर इन द सैंपल. इस पर्टिकुलर टेबल या रिएक्शन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है सल्फर के केस में? नो मैम. ठीक है, अब इसकी इनको इन्वॉल्व करते हुए एक न्यूमेरिकल आगे दिया हुआ है. यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट. तो अब आती है बात, लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर अल्टीमेट एनालिसिस की. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. After that, I will give you that. What is the time? Yeah.
already 2 minutes above. So just bear with me for 1 more minute, I will end it up. So percentage of oxygen. So first method से आपने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया था. ऐश के लिए यू आर गोइंग टू गेट दी वेट. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में जितना भी आपने कोल लास्ट में आपका बच जाएगा, दैट इज योर ऐश. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? It will be 100 minus the total of all the percentages that you get. That is your percentage of oxygen. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है which is important कि ऐसे तो ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अगर ज़्यादा होगी तो इट विल नॉट बी गुड फॉर योर सैम्पल, बिकॉज हमने पहले ही डुलोंग्स फॉर्मूला में पढ़ा था कि ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन एंड इज प्रेजेंट एज मॉइस्चर. सो इफ इट्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे. एक तो मॉइस्चर कैलोरीफिक वैल्यू कम करता है और अवेलेबल हाइड्रोजन कम होगी. तो जब आप पढ़ेंगे you don't have to exactly memorize the percentage here, 1% for every ये point याद नहीं करना है, it's only for understanding. But ये second point important है कि oxygen is in combined form with hydrogen in coal and therefore lesser value of hydrogen is available. ठीक है, Dulong's formula में we already know कि oxygen freely present नहीं होती है, it is present with hydrogen as moisture. ठीक है. So this clears your ultimate analysis, Bohm's calorimeter, Boyle's calorimeter, Dulong's formula, approximate analysis. इससे related एक numerical है which I have already given and its solution has been given. So if you have any problem with any of the slides, these 42 slides, किसी भी student को, तो वो मुझे WhatsApp कर सकता है. From next class we are going to talk about coal and methods of carbonization. ठीक है, and how petroleum is formed. तो ये next class के लिए होगा. But students, I expect कि किसी को questions अगर नहीं समझ में आते हैं, कोई topic नहीं समझ में आता है, तो they can send me a WhatsApp. ठीक है, I'll end the class. Thank you class. And we are going to start with a new topic tomorrow, which is your carbonization of coal.